प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरा माथे सोमनाथ मंदिर में कीनी पूजा अर्चना वेरावल में चुनावी सभा ने कीनो संबोधित बत्तासु बत्ता वोट गिरवारो कीनो आह्वान। पॉक्सो अधिनियम 10 बरस पूरा होबारे मौके जयपुर में राखी गई राज्य स्तरीय कार्यशाला। अधिनियम ने और असरदार तरीका से लागू करावा माथे करी गई चर्चा। बाल सप्ताह समापन रे मौके आज जयपुर में लगायो गयो बाल मेलो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानीसू टाबरा खातर राखी गई कई प्रतियोगिता में। शिक्षा महकमा कानीसू राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आसू झुंझुनू में हुई शुरू। 4 दिन रे इन प्रतियोगिता में आखा प्रदेश रा करीब 3000 सु बत्ता खिलाड़ी कर रहा है शिरकत। और भारत और न्यूजीलैंड रे बीच खेला गया दूसरा मैच में भारत 65 रन से दर्ज कीनी जीत। 3 मैच री कड़ी में भारत ने 1-0 से मिली बढ़त। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरा रे दूसरे दिन आज धोराजी में चुनावी सभा ने संबोधित कीनो। भाजपा उम्मीदवार री हिमायत में राखी गई सभा में प्रधानमंत्री कहो कि वणारी सरकार हमेशा देश और आम आदमी रा विकास खातर काम कीनी है। आटला टूंका गाळा में प्रगति थई छे अने एनी साथे साथे पशुओं माटे आपणे जे आखा देश में आ माणसोने जे कोरोना में टीकाकरण कर्युं एनी चर्चा तो थाय छे। આપણે પશુઓ માટેના ટીકાકરણનું મોટું અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે। હજારો કરોડ રૂપિયાના બજેટ ખર્ચી રહ્યા છે। આપણે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો લાભ પશુઓના અમારા પશુપાલકોને આપી રહ્યા છીએ। એ જ રીતે અમારા માછીમાર ભાઈઓ બહેનો એમને પણ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો લાભ મળી રહ્યો છે। અને હિન્દુસ્તાનમાં આટલી બધી સરકારો આવી, આ દરિયો હતો કે નહોતો ભાઈ? માછીમારો હતા કે નહોતા ભાઈ? માછીમારી ચાલતી હતી નહોતી ચાલતી? આવડો મોટું હિન્દુસ્તાન, આવડો મોટો દરિયા કિનારો, પરંતુ મત્સ્ય વિભાગ નહોતો, સરકારનો કોઈ મંત્રાલય નહોતું। અમે જુદો મંત્રાલય બનાવ્યું અને અમારા રૂપાલાજી એનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે। આખા દેશના માછીમારોની જિંદગી બદલવાનું કામ ચાલ્યું। ફિશિંગ હાર્બર બનાવવાના કામ હોય તેજીથી થઈ રહ્યા છે। અમારા ફિશરમેનને, માછીમારને આર્થિક મદદ કરવાનું કામ થઈ રહ્યા છે। અમે ટેકનોલોજી દ્વારા ચાહે ખેડૂતને જે પોર્ટલ હોય એનો લાભ ફિશરમેનને મળે, એનો લાભ પશુપાલકને મળે, એના માટે સબસિડી મળે, આની ચિંતા આપણે કરી છે। ભાઈઓ બહેનો, 2 દશક પહેલા વીજળી પર 75,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે આપણે સબસિડી આપી। એના કારણે મારા ખેડૂતને ક્યારે વીજળી મોંઘી ન પડી એની ચિંતા આપણે કરી છે। કિસાન સૂર્યોદય યોજના તહત કિસાનોને ખેતીમાં દિવસે વીજળી મળે એની ચિંતા કરી છે કે રાત્રે એને ઉજાગરા કરવા ના પડે, આ ચિંતા કરી। ભાઈઓ બહેનો, એક જમાનો તો ગુજરાતમાં માત્ર એક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી હતી, 4 એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીઓ બનાવી દીધી અને વિસ્તાર પ્રમાણે ખેડૂતોની જે આવશ્યકતા હતી એ પ્રમાણે આપણે રિસર્ચ કરવા માંડ્યા અને એના કારણે ખેતી આધુનિક બની, ખેતી વૈજ્ઞાનિક બની અને ખેતીની આખી રસમ બદલાઈ ગઈ। આ કામ આપણે કરી શક્યા છે। કમલમની ખેતી વિદેશોમાં જઈ રહી છે, કચ્છની આફૂસ વિદેશમાં જઈ રહી છે। અમારા અમરેલી જિલ્લો પણ હવે ફરફરાદીની દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે। ભાઈઓ બહેનો, બીજી બાજુ પ્રાકૃતિક ખેતી, મને રૂપાલાજી અમારા દિલીપભાઈ કહેતા હતા કે સાહેબ અમારા અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોએ પ્રાકૃતિક ખેતીને એવી પોતાની બનાવી દીધી છે ને લાખો ખેડૂતો હવે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે। હું માનું છું તમે ગુજરાતની તો સેવા કરી રહ્યા છો, પોતાની તો કરી રહ્યા છો, ધરતી માતાની કરી રહ્યા છો અને આવનારી પેઢીઓની પણ સેવા કરી રહ્યા છો। આ કામ જે અમરેલી જિલ્લાએ ઉપાડ્યું છે એ અભિનંદનને પાત્ર છે। ભાઈઓ, इनसे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में भगवान शिवरी पूजा अर्चना कीनी।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री पाछे बेरवलમાં રાખી ગઈ ચુનાવી સભામાં બોલતા થકાવાણા કહ્યું કે લોકતંત્ર उत्सवમાં एक एक वोटरी कीमतो है वणा बत्ता सुबत्ता वोट गिरवरो आह्वान भी कीनो आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में एक एक वोट का बहुत महत्व है, इसलिए लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज सोमनाथ मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने शिवजी का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। सोमनाथ से प्रधानमंत्री का पुराना जुड़ाव है। सोमनाथ रथ यात्रा से लेकर पार्टी को मजबूती दिलाने में इस क्षेत्र का खासा महत्व है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के परिसर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के शिखर पर पताका भी चढ़ाई। પોક્સો અધિનિયમ 2012 10 વર્ષ પૂરા હોબાર મોકે જયપુરમાં राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय री जुबेनाइल जस्टिस कमेटी और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा तत्वावधान में यूनिसेफ रा सहयोग सु यह कार्यशाला राखी गई। इनमें पोक्सो अधिनियम ने और असरदार तरीका सु लागू करवा माथे चर्चा करी गई। समन्वित करते हुए अंगीकृत करने का संकल्प लिया गया है, जिससे पीड़ितों को उचित पीड़ित प्रतिकर की राशि प्राप्त होगी। इस अंगीकरण से बाल पीड़ितों को पर्याप्त प्रतिकार की राशि उपलब्ध हो पाएगी, जिससे उनको आर्थिक संबल प्राप्त होगा। उक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गतिशील है। हर राज्य की, हर प्रदेश की, हर शहर की अलग अलग समस्याएं हैं। अब उनको एक साथ करके और हम सिर्फ एक अगर कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला दे देंगे तो पूरे देश के अंदर ये लागू होगा, शायद वो राजस्थान के अंदर कारगर हो, लेकिन हो सकता है केरल के अंदर नहीं हो या नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो। तो इन सब चीजों को देखकर तो एक कलेक्टिव इस तरह का कोई प्रयास करेंगे कि पूरे देश के अंदर किस तरह से इनका प्रचार प्रसार करके और किस तरह से इसको लागू किया जाए। भीलवाड़ा शास्त्रीनगर निवासी 10 बरसरो एक छात्र रूबिक्स क्यूबिक री श्रेणी में 2 नुआ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनायो है। 5वीं कक्षा में पढ़वा वालों अतीक्ष काकरिया 5 मिनट 12 सेकंड में 35 रूबिक क्यूब ने हल कर यह कीर्तिमान आपने नाम किनो है। अतीक्ष रा माँ बाप इन सफलता सु बेहद खुश है। सर, जब इसके स्कूल में कंपटीशन हुआ और इसके क्लास के बच्चे रूबिक क्यूब सॉल्व कर पा रहे थे और इसको नहीं आता था, तो इसको लगा कि मेरे को नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी इसके साथ हेल्प की। हम लोग इसको जो हम मोटिवेट कर सकते थे वो किया, प्लस साथ में इसको यूट्यूब पे ऐसे लिंक जिसके द्वारा जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व कर पा रहा था वो हमने सिखाए। और उन वीडियो को देख करके इसने इसको सीखा और इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाने पे हमने ध्यान दिया कि कैसे अपनी स्पीड बढ़ा करके उसको और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में जल्दी से जल्दी करता है। उसके बाद हमने सर्च किया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस रूबिक क्यूब से रिलेटेड कौन कौन से रिकॉर्ड है, किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। उस कैटेगरी से रिलेटेड हमने इसकी प्रैक्टिस कराई, इसकी स्पीड बढ़वाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूबिक क्यूब जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। तो इसने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखी, प्रैक्टिस की है कंटिन्यू, फिर ये सीखा। फिर ये सीखने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी थी तो मेरे को लगा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो फिर हमने इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया। मैंने 2x2 के 1 क्यूब सॉल्व किए, 3x3 के 30 क्यूब सॉल्व किए, 4x4 के 4 क्यूब सॉल्व किए। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे कंपटीशन हुआ जिसमें मेरे दोस्तों ने भी पार्टिसिपेट किया, तो मुझे भी लगा मुझे भी सॉल्व करना चाहिए रूबिक क्यूब को। तो पहले मैंने अपने मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मामी से हेल्प मांगी, लेकिन उन्हें नहीं आता था, तो फिर मैंने यूट्यूब से सीखा। मैं अगले रिकॉर्ड की तैयारी भी कर रहा हूँ
मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगा और मैं भविष्य में कलेक्टर बनना चाहता हूँ। दोसारा सहकार भवन में ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्षारी कार्यशाला राखी गई। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणारी मौजूदगी में राखी गई इन कार्यशाला में काश्तकारा ने न्यारी न्यारी सरकारी योजना में शुं लाभ दिलावा माटे चर्चा करी गई। कृषि विपणन मंत्री कहो कि गांवरा विकास में ग्राम सेवा सहकारी समितियां खास योगदान है, सो नुआ अध्यक्षा ने आपरा अधिकारा साथे काश्तकारारी भलाई खातर भी सक्रिय रहनो वहेला। ग्राम सेवा सहकारी समिति का बहुत बड़ा महत्व है और हमारी सरकार ने भी हाल ही में ग्राम सेवा सहकारी समिति को चुनाव करवाए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हमेशा पक्ष में रही गांव का विकास हो। आज हमने सहकारिता डिपार्टमेंट के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया है। उस कार्यशाला में सभी हमारी 40 जो सहकारी समितियों के अध्यक्ष उनको बुलाया है। हम ये चाहते हैं कि उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले। ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष बहुत ज़्यादा किसानों को भला कर सकता है। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे बिना ब्याज का पैसा हो, चाहे खाद्य वितरण का मामला हो, चाहे कृषि यंत्रों का मामला हो, चाहे जो कृषि फसल बीमा योजना, विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनका सबसे ज़्यादा किसानों को फायदा हमारे अध्यक्ष पहुंचा सकते हैं। तो इनकी कार्यशाला रखिए, क्योंकि सब नए बन के आए हैं तो इनको नॉलेज, जितनी इनको नॉलेज होगी इतना ही जनता को ज़्यादा फायदा कर सकेंगे। मैं समझता हूँ लगातार कार्यशाला बीच बीच में रखते रहेंगे ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा फायदा हो। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निशु रखा गया बाल सप्ताह आज जयपुर में समापन हुआ। 7 दिन बाल सप्ताह मेला में कई खेलकूद प्रतियोगिताओं, फिल्म प्रदर्शन, शैक्षणिक भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। प्रत्येक दिन 400 से 500 बच्चों ने हमारे साथ में समय बिताया। हमने इसके अंतर्गत बच्चों को फिल्म दिखाई, बच्चों को बायोलॉजिकल पार्क लेके गए, बच्चों की वॉकाथन के माध्यम से हमने एक मैसेज दिया कि बाल श्रम अपराध है, बाल विवाह अपराध है। उसी क्रम में 7 दिन के बाद आज बाल सप्ताह का हमारा समापन है और बाल मेले का आयोजन है और हर कार्यक्रम में एक ना एक संदेश दिया, जैसे मोबाइल का क्या दुरुपयोग है और हमें अपने जीवन में किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान री गुजरात सीमा माथे मादक पदार्थारी तस्करी रे खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रे तहत सांचोर में बड़सम पुलिया रे कन्ने तलाशी री बगत एक वाहन सु भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करी गई। जालोर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल बतायो कि जब्त करी गई शराब री कीमत लगभग 50 लाख रुपया है। पुलिस इन सिलसिला में 2 जना ने गिरफ्तार की है। राजधानी जयपुर में आज ज्योतिष और राष्ट्रीय महाकुंभ राख्यो गयो। बिड़ला सभागार में राख्या गया ज्योतिष महाकुंभ में आखा देश से आया 1500 से बत्ता ज्योतिषी शिरकत की। महोत्सव आयोजक आशीष लोहिया बतायो कि कार्यक्रम में ज्योतिषी ज्योतिष रत्न, फलित ज्योतिष, कुंडली और ग्रह दशा से जुड़ा मुद्दा माथे चर्चा की। महाकुंभ में फिल्म अभिनेता रजा मुराद सेती के कलाकार भी मौजूद रहा। इन बगत एक टॉक शो भी रखा गया। ये इवेंट उन लोगों को लेके बनाया गया है कि कैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर सकते हैं रत्न पहन के, तथा अपने अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। जयपुर को दूसरी काशी का है, छोटी काशी, उत्तरा काशी। तो यहाँ पर जो राजाओं की परंपरा रही है, सवाई जयसिंह जी ने बहुत इंटरेस्ट इस विद्या में लिया। तो हमारे यहाँ पर ज्योतिष ज्ञान और इसकी बहुत बड़ी परंपरा रही है। ये है कि एक पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें देश भर के नामी ज्योतिषी मंच पर रहेंगे और आपके जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे जो लोगों के अनसॉल्व्ड हैं। जैसे आज की ज्वलंत समस्याएं, वैवाहिक जीवन, बहुत सारी ये जैसे समस्या है, वास्तु से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए जो प्रश्न हो सकते हैं ज्योतिष संबंधी, उनका एक टॉक शो है। लोगों के प्रश्न आमंत्रित किए हुए हैं, उन प्रश्नों को पूछा जाएगा, वो उत्तर देंगे। रत्न कैसे काम करते हैं आपके जीवन में, रत्न का साइंटिफिक वे क्या है। हजारों साल पहले हमारे ज्योतिषी ये बता देते थे कि सूरज ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्रमा ग्रहण कब होगा, अमावस कब होगी और उसके क्या असर होंगे, पूर्णमासी कब होगी। तो ये एक साइंस है। ये तो पिछले 1.5-2 सालों से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एडवांस हुई हैं। ये हमारी जो विद्या है ये तो हजारों साल पुरानी है।
अभी एक फिल्म आई थी, हिंदुत्व आई थी, एक रामायण आई थी। तो फिल्में आती रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जलवा तो एक ही बार होता है। जय संतोषी माँ का जलवा तो एक ही बार हुआ था, महाभारत का जलवा एक ही बार हुआ था, रामायण का जलवा एक ही बार हुआ था। तो जलवे तो एक ही बार होते हैं। अब अगर सरकार फिल्मों का टैक्स माफ करे, राजस्थानी फिल्मों का टैक्स माफ करे, तो यकीनन हर आदमी जो है वो बचत चाहता है, बचत योजना में विश्वास रखता है। तो अगर ऐसा हो, टैक्स फ्री हो, कम दाम के टिकट हो, अच्छी पब्लिसिटी हो, तो यकीनन राजस्थानी फिल्में भी चलेंगी। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल में काल संजा संगीतरो कार्यक्रम जहाने खुसरो राख्यो गयो। कार्यक्रम में जाण्या पिछाण्या पार्श्व गायक जावेद अली आपरी खूबसूरत प्रस्तुतियां देनी। राजस्थान पर्यटन महकमा कानीसू राख्या गया इन कार्यक्रम की शुरुआत मूमल रूह ए रेगिस्तान बेले प्रस्तुति रे साथे हुई। जावेद अली नाराए मस्ताना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ओरे पिया और पधारो मारो देश जेड़ा गीत जरिए दर्शकारी तालियां ले बद कीनी। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, राज्य मुख्य सचिव उषा शर्मा और राजसिकोरा चेयरमैन राजीव अरोड़ा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। कब तक हमारे इश्क की आग ऐसे ही जलती रहेगी? आज भी उसकी उंगलियों के निशान ने इसे एकदम चमकीला कर दिया है। मेरी फनकारी का जवाब किसी भी साज से दे सकते हो। अगर गुलाबी नगर जयपुर 295वां स्थापना दिवस सिलसिला में जयपुर दूरदर्शन कानीसू प्रसारित कार्यक्रम कड़ी में इन बार पेश है गालव ऋषि तपोस्थली गलता तीरथ से जुड़ी जानकारी। जयपुर स्थापना सु पहली गलता तीरथ यूं तो गालव ऋषि और संत महात्मा वारी तपोस्थली रा रूप में जाण्यो जावे हो, पण अठे मंदिरारी स्थापना दीवान राव कृपाराम 18वीं शताब्दी में की नहीं। गोमुख सु बहती अविरल जलधारा इन पुण्यभूमि ने देव कृपा रे निमित्त बनावे है। सगला गलता खेतर में कुल 7 पवित्र कुंड है। शहर री उगुणी में अरावली पहाड़िया रे बीच गलता तीर्थ में सूर्य मंदिर सेती कई छोटा बड़ा मंदिर है। गलता तीर्थ रा सूर्य मंदिर बाबत यह मान्यता है कि उगता सूरज री पहली किरण शहर में अठे ही पड़े है। यह मंदिर गलता पहाड़ी रे ऊपर री चट्टान माथे स्थित है। भारत में जो परंपरा में जो हमारी गणित वगैरह जो चलती है वो सूर्य से ही चलती है, और उस भावना से हमारे यहाँ जो है वो सूर्य मंदिर की स्थापना जो कि भगवान का सूर्य का उदय पूर्व से होता है। तो गलता की घाटी में उस समय तत्कालीन आचार्य की देख रेख में उस समय इस जयपुर रियासत के दीवान राव कृपाराम के द्वारा जो है वो यहाँ की अनुमति के साथ ही उस समय की गई। अठहरी प्राकृतिक और मनोरम छटा सैलानिया ने आपरे कानी खींचे है। राजधानी रा आराध्य मंदिरा में खास गलतार तीर्थ में के लाल मूरा बंदर भी रहे है। मकर संक्रांति और पूर्णिमा रे अलावा आम दिना में भी जयपुर से प्रदेश रा श्रद्धालु बड़ी तादाद में अठे डुबकी लगावा खातर और दर्शन करवा खातर आवे है। ये जो गलता जी है ये काफी प्राचीन स्थान है
और जब आमेर बसा था उससे पूर्व में भी ये मंदिर रह चुका है और इसकी बहुत ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। गलता जी बहुत प्राचीन स्थान है, सतयुग का स्थान है। यहाँ कई ऋषि मुनि ने तपस्या ही की है। लोग अपनी मान्यताओं को लेके आते हैं। पर्यटक की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हमें बताया गया था गलता जी का ये मंदिर है तो तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पे आए, बहुत अंदर से जो आत्म स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है और जो घूमते हुए कितना अच्छा माहौल और जो हम बेसिकली मथुरा वृंदावन जाते हैं लेकिन जो शांति यहाँ मिली है वो यहाँ पे कभी नहीं मिली। यहाँ गलता जी में आए हैं, यहाँ गलता जी में आके हमने देखा है तो यहाँ का जो पहाड़ी एरिया है वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ गौमुख से जो धारा बह रही है वो कहाँ से आ रही है ये किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे आज गलता जी के यहाँ पे आई थी तो बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत है, बहुत ही सारी एंशिएंट लग रहे हैं सारी प्रॉपर्टी यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारी मंकीज़ है, देखने के लिए कुछ एडवेंचर भी लग रहा है। जयपुर में यहाँ पे आए हैं स्नान करने के लिए, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, हरियाली है, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, वन्य जीव हैं, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। Yeah, I'm from France, so it's first time in India, in Jaipur. So far so good, really good experience. People are really welcoming, very nice. Here also is special with you can see monkeys everywhere. It's something incredible, especially from my country in France where we don't have that many monkeys. शिक्षा महकमा कानीसूर राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज से झुंझुनू में शुरू हुई। 4 दिन री इन प्रतियोगिता में बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस जेडी प्रतियोगिता में राखी जावेला। 17 और 19 आयु वर्ग री प्रतियोगिता में राज्य री 432 टीम रे जरिए 3072 खिलाड़ी शिरकत कर रहा है। है कि एक साथ 3 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करने का दायित्व बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने दिया है, जिसके अंतर्गत बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस 3 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स का दायित्व हमें मिला है झुंझुनू एकेडमी जीवेम स्पोर्ट्स स्कूल विजडम सिटी को। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम पूरे उत्साहित हैं कि बहुत शानदार तरीके से इन कार्यक्रमों का आयोजन हम करेंगे और खेल को खेल की भावना से खेलते हुए पूरे राजस्थान राज्य से आए हुए सभी खिलाड़ियों का हम पूरा ध्यान रख करके उनको समुचित बहुत सुंदर खेल की सुविधाएं, खेल की व्यवस्थाएं, खेल का वातावरण देने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा झुंझुनू ये 66वीं जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राजस्थान में पहली बार हो रही है। इतनी कि 3 गेम बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस जिसकी एक ही जिले से 12 टीमें भाग ले रही हैं और यहाँ पर 2400 से ज़्यादा मतलब खिलाड़ी और उनके टीम प्रभारी हैं। 4 एक गेम की टीम। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है जिसमें हम भी भाग लेने के लिए आए हैं और हमारा गेम है बैडमिंटन और यहाँ पे सारी ही सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ की हमें तकलीफ नहीं हो रही है। यहाँ पर राज्य स्तर पर हो रहे हैं मैच, मैं टीटी खेलता हूँ और यहाँ बहुत अच्छा तो कोर्ट है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था करी गई हुई है यहाँ पर और हमारे लिए सब कुछ खाना पानी सब कुछ अच्छा है और हम यहाँ पर अच्छी तरह से खेलने आए हैं और हमारे को कोई टेंशन नहीं है। हम जीतेंगे क्योंकि हम इतनी साल से मेहनत कर रहे हैं और हमको इतना अच्छा कोर्ट मिला है यहाँ पर और ऑब्वियसली हम जीतेंगे यहाँ पर। भारत और न्यूजीलैंड रे बीच T20 क्रिकेट मैच री श्रृंखला रा दूसरा मैच में भारत न्यूजीलैंड ने 65 रन से हरा दियो है। इनके साथ ही 3 मैचारी श्रृंखला में भारत ने 1-0 से बढ़त मिल गई है। भारत का निशु सूर्य कुमार यादव 111 रन बना नॉट आउट रहा। There should be another one. Hasn't hit it far enough, and that ends it. That ends it for New Zealand. Put out of their misery. Bowled out by India, and India have smothered the life out of New Zealand here today at Bay Oval, Mount Maunganui. A dominant display.
53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आजसू गोवा में शुरू हो रह्यो है। फिल्मोत्सव में 79 देशारी 280 फिल्मारो प्रदर्शन कर्यो जावेला। कोरोना री वजह सू 2 बरस पाछे आयोजित हो रहा इन महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर सू वहेला। पणजीरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होबावाला समारोह में मेजबान भारत री 25 फिल्म और 19 गैर फिल्म दिखाई जावेला। महोत्सव की शुरुआत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेला। अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे इंडियन पैनोरमा की फीचर फिल्मों की, तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, दुनिया की बड़ी फिल्मों को भारत के पटल पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लाने का अवसर मिला। ये 53rd एडिशन जो है अपने आप में बहुत भव्य भी है और इसमें फिल्म बाजार जो बनाया गया बहुत शानदार बना है। और मैं तो ये कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म बाजार भी बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को भारत पर लाया गया और भारत की क्षेत्रीय फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। भारत की कला संस्कृति को दुनिया में पहुँचाने का काम भी होगा। तो एक बड़ी मार्केट को प्रोडक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए भारत बने, उस दिशा में बड़ा कदम है और मुझे प्रसन्नता है कि दुनिया भर के लोग इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और राज्य में इन दिना मौसम सरद गरम रो चाल रह्यो है। रात और दिन तापमान में अंतर होबारे कारण जठे रात में ठंडो हुए है वठे दोपहर में तेज तावड़ा रे कारण पसीनो भी छूट रह्यो है। मौसम महकमा मुजब आवता 48 घंटा ताई एड़ी ही स्थिति बनी रहबारी आस है। लाला 24 घंटा में केस शहर में रात रो तापमान 10 डिग्री सू कम रह्यो, जबकि दिन रो तापमान 15 डिग्री सू ऊपर रह्यो। राजधानी जयपुर में कमती तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो, जबकि 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रे साथे अलवर सबसू ठंडी ठोर रही। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा दौरा में थे। सोमनाथ मंदिर में कीनी पूजा अर्चना। बेरावल में चुनावी सभा ने कीनो संबोधित। 32 वोट घेरवारो कीनो आह्वान। पॉक्सो अधिनियम रा 10 बरस पूरा होबारे मौके जयपुर में राखी गई राज्य स्तरीय कार्यशाला। अधिनियम ने और असरदार तरीका से लागू करवा माथे करी गई चर्चा। बाल सप्ताह समापन रे मौके आज जयपुर में लगायो गयो बाल मेलो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानीसू टाबरा खातर राखी गई प्रतियोगिता में। शिक्षा महकमा कानीसू राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आसू झुंझुनू में हुई शुरू। 4 दिन री इन प्रतियोगिता में आखा प्रदेश रा करीब 3000 खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। और भारत और न्यूजीलैंड रे बीच खेला गया दूसरा मैच में भारत 65 रन सू दर्ज की जीत। 3 मैचारी कड़ी में भारत ने 1-0 से मिली बढ़त। राजधानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।